नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एलओसी के पास बारूदी सुरंग में विस्फोट, एक सैनिक घायल। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। मुंबई में मरीन लाइन्स में स्थित बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में लगी भीषण आग। महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंचा 60 करोड़ के पार। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर थाना क्षेत्र में जवानों की टीम नक्सलियों की सूचना पर सर्चिंग पर निकली थी। एक जवान आईडी की चपेट में आने से घायल हो गया, जिसे तत्काल उपचार के लिए रायपुर भेजा गया। बता दें कि 21 फरवरी को जिला नारायणपुर के थाना छोटे डोंगर से जिला बल एवं डीआरजी की संयुक्त पार्टी सड़क सुरक्षा ऑपरेशन के लिए निकली हुई थी। सर्चिंग अभियान के दौरान 2 बजे के लगभग टॉय मैटा और कवानर के बीच जंगल में आईडी की चपेट में आने से डीआरजी का एक जवान घायल हो गया। घायल जवान की हालत अभी खतरे से बाहर है। घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया और बेहतर उपचार के लिए रायपुर भेजा गया है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से, जहां सहायक प्रधान अध्यापक का वीडियो वायरल हो रहा है। टेबल पर पैर रखकर आदेश देने का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डाइट प्रशिक्षु निपुण आकलन के दौरान का बताया जा रहा है वायरल फोटो। शिक्षा के मंदिर में किताब पर पैर रखने का शिक्षकों का चल रहा नया ट्रेंड। शिक्षक के इस करतूत पर पर्दा डाला जाएगा या होगी बड़ी कार्रवाई। शिक्षा विभाग की जमकर हो रही है किरकिरी। चकिया विकास खंड के कंपोजिट विद्यालय बरोजी का बताया जा रहा है ये मामला। शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि कर्नाटक में केपीसीसी अध्यक्ष में बदलाव होगा। देश के विभिन्न राज्यों की पीसीसी अध्यक्ष में बदलाव हुआ है। लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली ने कहा कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में डीसीएम डी के शिव कुमार शुरू से ही मौजूद रहे हैं। ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ, ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಅವ್ರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅಥಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಇಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಡಿನ ದುರುಪಯೋಗ ಸರ್, ಇಡಿ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿರೋಲ್ಲ, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಇಡೀ ದುರುಪಯೋಗ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಈ ಮೂಡಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 14 ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 116 ಸೈಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರಾಜಕೀಯ. ನಾನು ಒಂದು ಈಗಲೇ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ರಾಜಕೀಯ ಇದೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಸೈಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. ಅದು ಈಗ ಸಿಮ್ಲರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೇ ಥರನೇ ಇದ್ದಾವೆ ಕೇಸ್. ಅದು ಯಾವುದೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ ಎಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ. ಈಗ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಭೆಗಳು ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾವು KPCC ನೇಮಿಸುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ, ಚರ್ಚೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬಂದಾಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿದೆ, ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ, ಅದೇ ಹೇಳಿದಾರಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋತಾರೆ ಅವರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ತಾವು ಆಕಾಂಕ್ಷಿ? ನಾವು ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ. ಮಾತ್ರ ಬಂದಾಗ ಚರ್ಚೆ ಬಂದಾಗ ಬಂದಾಗ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಾಗ ನೋಡೋಣ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ತಮಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂಬಾಲಕರು ನಾಯಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅವರು
ಅವ್ರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕಡೆ ಅವರವ್ರ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು, ಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಜೆಟ್ ನಂತರ CM ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ರಚನೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬದಲಾವಣೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಅದು ಇದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರೋಲ್ಲ. ನಾವು ಆ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಂತ್ರಿಗಳಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸಕರಿಗೆ ಏನಿದ್ರು ವರಿಷ್ಠರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಾವಶ್ಯಕ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರೆದಿರೋಂಥ ವಿಚಾರ. ಅದು ಸಚಿವರು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪುನರ್ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು, ಕೆಲವು ಸಚಿವರು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು, ಹೊಸಬ ತಗೋಬೇಕು, ಶಾಸಕರು 3 ಟೈಮು 4 ಅದೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಹೈಕಮಾಂಡೇ. ನೀವು ಎಲ್ಲದೂ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಹೈಕಮಾಂಡೇ ಬರ್ತೈತೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾರು ನೋಡೋರೆ? ವರಿಷ್ಠರು ನೋಡಬೇಕು. ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಬರೋದು. ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಉತ್ತರ. ಸರ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂದೆ ಚುನಾವಣೆ ಮುಂಚೆನೇ ಒಂದು ದಲಿತರ ಶೋಷಿತ ಸಮಾವೇಶ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ವರಿಷ್ಠರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾಡಬಾರ್ದೇನಿಲ್ಲ. ವರಿಷ್ಠರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನು. ತಾವು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ. ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಮೇಶ್ವರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದು ಸಮಾವೇಶ? ಅದು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಯಾವಾಗೂ ಏನಂತ. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು. ಪಕ್ಷ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ ಚರ್ಚೆ. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिव इन रिलेशनशिप पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की संस्कृति का हिस्सा नहीं है, लेकिन सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखती है, इसलिए लिव इन में रहने वाले लोगों को इसकी जानकारी देनी होगी। सरकार का उद्देश्य लिव इन में रहने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सुनिए। हमारे सम्मानित विपक्ष के साथियों ने अपने वक्तव्य में लिव इन को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए हैं। लिव इन में के संबंधों में रहने वाले रजिस्ट्रेशन को लेकर हमारी आलोचना भी की है। आज मैं देख रहा था कि कल जब हम यहाँ बजट प्रस्तुत कर रहे थे, कुछ लोग लिव इन को लेकर जो है जुलूस निकाल रहे थे। अरे हमने तो महिला सशक्तिकरण के लिए किया है। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से केवल 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि माना हम यूसीसी से लिव इन संबंधों के रजिस्ट्रेशन संबंधी अगर प्रावधान हटा देते तो क्या वो बताएंगे कि इन लिव इन संबंधों में जो बच्चे पैदा होंगे, लिव इन संबंध टूटने के बाद कौन उनका पालन पोषण करेगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसकी पैतृक संपत्ति का क्या होगा? क्या वो इस बात का जवाब देंगे कि लिव इन संबंध में रहने वाले किसी आफ्ताब ने हमारी श्रद्धा के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में डालने का कृत्य दोबारा किया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या विरोध करना का कारण ये तो नहीं कि इस प्रावधान से समाज को डसने वाले कई आफ्ताब बेनकाब हो जाएंगे? आप सबको मैं एक केस जरूर बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में एक आफ्ताब नाम के युवक ने एक श्रद्धा जैसी बेटी को अपने जाल में फंसाया और शुरू में रहते रहते कुछ दिनों के बाद संबंध खराब हो गए। जब संबंध खराब हो गए तो उसके शरीर के टुकड़े, उसकी हत्या करके, उसके टुकड़े टुकड़े करके 300 लीटर के फ्रिज में उसके टुकड़ों को डाल दिया। उस बेटी का नाम था श्रद्धा बालकर और यह हवानियत करने वाला था आफ्ताब। और उसमें से फ्रिज में से एक एक टुकड़ा निकालता था और जंगल में फेंक देता था।
और सोशल मीडिया के अकाउंट से उसके माता पिता से, उनके परिवार वालों से लगातार संपर्क में रहता था। टेलीफोन सोशल मीडिया के माध्यम से। और माता पिता को था कि हमारी बेटी जिंदा होगी, हमारी बेटी ठीक होगी। बहुत चर्चित कांड रहा था। इसलिए हमने लिव इन में, हमने किसी की निजता को भंग करने का कोई हमारा ऐसा मन नहीं है कि हम इस प्रकार का करें। हम केवल और केवल उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी आफताब अब श्रद्धा जैसी बिटिया के साथ इस प्रकार की हैवानियत न कर सके। अब आपको सुनाते हैं कि भू कानून को लेकर सीएम ने क्या बयान दिया है। उनकी जन भावनाओं के अनुरूप हमने भू कानून को प्रस्तुत किया, उसको विधानसभा ने उसको पारित किया है। जन भावनाएं हैं जो यहाँ के स्टेक होल्डर चाहते हैं, यहाँ के सामाजिक संगठन के लोग चाहते हैं, हमारे बुद्धिजीवी लोग चाहते हैं, उन सब की भावनाओं के अनुरूप सभी बातों का ध्यान में रखते हुए कि हमारी भूमि की जो खरीद फरोख्त है वो भी जो है न हो, और हमारा जो निवेश है वह भी किसी रूप में प्रभावित न हो, यानी कि इकोलॉजी इकोनॉमी दोनों में संतुलन रहे और लोगों की जन भावनाएं आगे बढ़ें। मैं प्रदेश के हमारे आंदोलनकारियों को, हमारे बलिदानियों को, देश की सीमाओं पर अपने प्राणों का बलिदान देने वाले उन सभी हुतात्माओं को भी इस अवसर पर नमन करना चाहता हूं, जिनके कारण से हमारा राज्य तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अनेक नए नए निर्णय हम ले रहे हैं, अनेक नवाचार कर रहे हैं। समावेशी बजट हम लाए हैं जिसमें हमने हर वर्ग का प्रावधान किया है। यूसीसी हमने राज्य के अंदर लागू कर दिया है। नकल का अध्यादेश हम लेकर आए थे जिसमें 20,000 से अधिक भर्तियां हमने अभी तक संपन्न कर ली हैं। धर्मांतरण का कानून, दंगा रोकने का कानून, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई, ये सभी कार्रवाइयाँ ये उत्कृष्ट और आदर्श उत्तराखंड की परिकल्पना है। और जन भावनाओं के अनुरूप जो हमने निर्णय लिए हैं, निकट भविष्य में भी हम राज्य के हित में जो भी जरूरी निर्णय होंगे वो जरूरी निर्णय लेने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ ने पदोन्नति में आरक्षण नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि विद्युत कंपनी प्रबंधन द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत कार्य किया जा रहा है, जिससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारी और कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। विद्युत कंपनी प्रबंधन ने मनमानी करते हुए सिर्फ सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया, जिससे आरक्षित वर्गों के अधिकारी और कर्मचारी खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं।
हाँ, मैं आर्य ध्रुव क्रांति अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अधिकारी कर्मचारी संघ से। और हम लोग पदोन्नति में आरक्षण को लेकर के अभी हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है, जिसमें मुख्य तौर पर पिनवा कमेटी के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन की ओर से जब तक नया पदोन्नति नियम नहीं बना देगा तब तक कोई भी पदोन्नति ना किया जाए। उसके बाद भी कंपनी के द्वारा लगातार पदोन्नति की जा रही है और उसके खिलाफ में हमने अभी प्रबंधन को नोटिस दिया है कि 28 फरवरी को वहाँ की मीटिंग करेंगे। फिर भी हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो राज्य स्तर पर 10 मार्च को आकस्मिक अवकाश की घोषणा किया है और उसके बाद भी हमारी मांगें नहीं मानी गई तो 17 मार्च से आकस्मिक पूरे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। और हमारे इसमें लगभग राज्य में 10 से 11 हज़ार हमारे कर्मचारी अधिकारी कार्यरत है और चूँकि विद्युत सेवा अति आवश्यक सेवा है, हम उसको हम किसी भी प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता को इसमें तकलीफ हम नहीं देखना चाहते। लेकिन हमने लंबे समय से 4-5 सालों से हमारी मांगों को अनसुना किया जा रहा है तो हम लोग विवश हो गए हैं और हमारे इस क्रमबद्ध आंदोलन को करने के लिए। और इससे विद्युत सेवा जो है पूरे राज्य के अंदर बाधित हो सकती है और इसका जो भी जिम्मेदारी होगी विद्युत कंपनी प्रबंधन की है और संबंधित विभाग की है। और आपके माध्यम से मैं अपनी बात को जो उच्च प्रबंधन है हमारे, खास करके ऊर्जा विभाग है, हमारे प्रशासन विभाग है, उनके तक मैं आपकी बात। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।